So let's learn our very first topic, which is unit and dimension. This is very easy chapter. Come on, you need to understand this topic. ये बहुत easy chapter है, ठीक है? Let's start with it. For very first thing is तुम्हें units के बारे में और ये सब चीजों के बारे में बेसिक सा आइडिया तो है ही. तुम्हें अभी तक इतना सारा साइंस पढ़ा है, ठीक है? तुम्हें पता है ये सब क्या होता है. What is unit and what is centimeter, what is gram, what is foot, what is pound. तुम्हें पता है, ठीक है? I am not here to explain all this thing. मैं तुम्हें अभी के लिए बहुत बेसिक सा डिस्कशन करने वाला हूँ. Then we will be learning how to find dimension. और आज के हमारे चैप्टर का मेन इंटेंशन इज टू हाउ टू फाइंड डायमेंशन. ठीक है, तुम्हें वो एक चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए. यू हैव टू do it anyway. You need to understand this all the things. Come on, let's begin with it. तो हम फिजिक्स में majoritarily we deal with physical quantity. The physical quantities are what? What is physical quantity? Anything which we can see, which we can touch, which we can feel is called as physical quantity. जैसे force we can feel, it is a physical quantity. जैसे mass we can weight we can feel, that is a physical quantity. जैसे this is some kind of length we can measure, yeah, this is physical quantity. लेकिन ये definition में feel करने के लिए feelings भी होते हैं ना, but those are not physical quantity. Come on. तो हमने एक नई क्वांटिटी की एक नया डेफिनेशन बनाया जिसको हम ऐसा बोलते हैं कि the anything which we can measure is called as physical quantity. समझ में आया? जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे. बात समझ में आया कि नहीं? तो जैसे लेंथ वी कैन मेजर, इट इज फिजिकल क्वांटिटी. मास वी कैन मेजर, इट इज फिजिकल क्वांटिटी. टाइम वी कैन मेजर, इट इज फिजिकल क्वांटिटी. weight we can measure, it is physical quantity. Feelings we cannot measure, it is not physical quantity. Come on, did you understand? Feelings are not physical quantity. Now physical quantities के बारे में तुम्हें basics idea तो मिल गया. Anything which you can measure is called as what? Physical quantity. ठीक है? अब physical quantities are majorly of three types. First, second and third. These are three types. Come on, yeah. Let's understand what is it. Physical quantities are of three types. The very first is fundamental physical quantity. Fundamental. Second is supplementary, and third is derived. ठीक है? तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज हमें पता होनी चाहिए. अभी हम ये फिजिकल क्वांटिटीज को तीन कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड करें उसके पहले तुम्हें ये बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट पता होनी चाहिए. क्योंकि हम इस सिस्टम के लिए नहीं, इस सिस्टम के लिए नहीं, इस सिस्टम के लिए नहीं, इन तीनों के लिए नहीं, उसके बाद जो एक सिस्टम का बताऊंगा ना उसके लिए ये पूरा डिस्टिंग्विश करने वाले. ठीक है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पहले ये तीनों चीज तुम्हें पता होनी चाहिए. उसके बाद में जैसे बहुत पहले की बात है, अलग अलग कंट्रीज जब एक दूसरे से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं थी उस वक्त में हर कंट्रीज अपने अपने सिस्टम यूज करती थी और वो सिस्टम इन तीनों में से कोई एक होती थी और एक दो अलग सिस्टम भी है बट उसकी हम डिस्कशन नहीं करने वाले. CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम. CGS is centimeter gram second system where length used to be measured in centimeter, mass used to be measured in gram, time used to be measured in second. ये होते हैं सबसे पहले सिस्टम जिसको हम बोलते हैं CGS सिस्टम. याद रहेगा? तो सेकंड इज फुट पाउंड सेकंड सिस्टम. FPS सिस्टम. सेकंड इज व्हाट? फुट. लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, mass is measured in pound, time is measured in second. Yes, Britishers used to use this system. इसीलिए तो अभी भी हम हमारे इंडिया में अभी तक भी काफी सारी चीजें हम फुट और पाउंड में मेजर करते हैं. तुम्हें पता है ये तो डे टू डे लाइफ में कम अक्रॉस करते हो. ठीक है? तो लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड. This was used by Britishers. ठीक है? English people were using this. तो third is length is measured in meter, mass is measured in kg, time is measured in second. The third is called as MKS, meter kg second system. तो थर्ड सिस्टम इज MKS. इसको ब्रॉडली इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, इसको मेट्रिक सिस्टम भी बोला जाता था. मेट्रिक सिस्टम वाज वेरी फेमस. मेट्रिक सिस्टम बहुत फेमस थी. इसको ऑलमोस्ट सब कंट्रीज यूज करती थी लेकिन तीन कंट्री को छोड़ के, एक लिबेरिया, दूसरा म्यांमार और तीसरा ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनके पास उनकी खुद की सिस्टम थी, यूनाइटेड स्टेट्स कस्टमरी सिस्टम. तो वो अपना खुद का चलाते थे, वो यूज नहीं करते थे ये सारे सिस्टम. लेकिन द प्रॉब्लम कहां पे होने लगी? जब सारी कंट्रीज एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लगी, जब उन लोग एक दूसरे से ट्रेड डील करने लगे, बहुत बड़ी बड़ी शिपिंग करने लगे एक दूसरे से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब जगह में
मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। मेजर करने के बाद ही तो चीजें भेजी जाती है, ऐसे ही थोड़ी ना भेजी जाएगी, समझ रहे? कुछ तो मेजरमेंट करना पड़ेगा ना। अगर पेन ड्राइव भेज रहे तो ऑब्वियसली उसके मेमोरी को बताना पड़ेगा कि ये 32 जीबी का है, ये 50, ये 64 जीबी का है, 128 जीबी का। तो दिस इज सम काइंड ऑफ मेजरमेंट कि ये उसका मेजरमेंट है, समझ में आया? तो हर क्वांटिटी के लिए मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ती है, उसी के बाद उसको भेजा जाता है। ऐसे ही थोड़ी उठा के ये मुट्ठी भर के तुझे दे दिया सोना, तो ऐसा नहीं होता है। कम ऑन, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ यूनिट, और वो सिस्टम होती है जिसमें हम मेजर करें उसको, और उस मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। तो इनिशियली हर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे हर क्वांटिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सम न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट, सॉरी, सम न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट, याद रहेगा। तो ऐसे हर क्वांटिटी को मेजर करने का एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। फर्स्ट इज व्हाट, सम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब ये यूनिट जो होता है उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है उसका मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। वो प्रीफिक्सेस जो सारे होते हैं, दोस आर पावर ऑफ 10। अभी हम उसकी बात नहीं कर, लेट मी टेल यू वेरी सिंपली। समझो हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझो मैंने लिया यहाँ पे 25 किलोग्राम, मैंने किसी को 25 किलोग्राम का कुछ सामान दिया। तो नाउ 25 किलोग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझो यहाँ पे ध्यान से। 25 किलोग्राम में 25 इज द नंबर, 25 क्या है बोलो, नंबर है। k क्या है, 10⁻³ है। किलो पता है ना 10⁻³ होता है। तो 25 into 10⁻³ मतलब ये टोटल हो जाता है क्या, 20, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 25 into 10⁻³ मतलब 25,000 ग्राम। समझ रहे हैं ये किस तरह से क्वांटिटी रिप्रेजेंट हुई। 25 इज जस्ट अ नंबर, उसके आगे जो उसके पीछे अगर हम ऐसा ये लिखना ऑप्शनल है, हम के लिखे नहीं लिखे चलता है, ठीक है। के इज जस्ट अ प्रीफिक्स। अगर हमें क्वांटिटी को बड़ा क्वांटिटी या छोटा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना है तो हमें ये प्रीफिक्स की जरूरत पड़ती है। दीस आर पावर ऑफ 10। ये तुम्हें बताऊंगा मैं अलग से जब मैं तुम्हें कराऊंगा ये चीज। तो हम ये सारे प्रीफिक्सेस भी पढ़ेंगे व्हिच आर वेरी यूजफुल इन केस ऑफ कन्वर्जन। अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो लास्ट में लिखा ना जी, जी रिप्रेजेंट्स की किसी चीज का तो मास है। समझ में आया कि किसी चीज का मास कैसे पता चल रहा है, कैसे नहीं, किलोमीटर में होता है ना, लेंथ भी तो किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। तो k does not represent its length, मीटर रिप्रेजेंट इट इज लेंथ, ग्राम रिप्रेजेंट इट इज मास। समझा कि नहीं, न्यूटन रिप्रेजेंट इट इज फोर्स, यस तुम्हें समझ में आया। सेकंड रिप्रेजेंट इट इज व्हाट, टाइम, यस तुम्हें पता चला अभी कैसे मैं कर रहा हूं ये। तो ये कुछ चीज होती है इसको हम बोलते हैं यूनिट, समझ में आया। उसके आगे सिर्फ नंबर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली नंबर इनटू यूनिट गिव्स यू कितना क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी है, समझा, कितना क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी है। यूनिट गिव्स यू इट इज व्हिच क्वांटिटी, नंबर गिव्स यू इट इज हाउ मच क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यस। तो अभी हमारे पास में एक अच्छा सा सिस्टम है व्हिच इज मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम बहुत अच्छे से वाइडली यूज हो रहा था, लेकिन तीन लोग इसको यूज नहीं करते, तीन कंट्रीज इसको यूज नहीं करती। फर्स्ट इज लिबेरिया, सेकंड इज म्यांमार, थर्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसको हटा के हमने क्या किया, इसको हटा के देयर कम्स वन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। तो उसने एक नया सिस्टम फॉर्म किया। वो नया सिस्टम जो फॉर्म किया उस सिस्टम को नाम दिया SI, सिस्टम ऑफ यूनिट। याद रहेगा, सिस्टम इंटरनेशनल ने एक नया सिस्टम लाया व्हिच इज कॉल्ड एज SI यूनिट। एंड SI यूनिट डिवाइड्स physical quantity into three types. Physical quantity into three types. The very first physical quantity, the very first type of physical quantity is fundamental, second type is supplementary, third type is derived. समझ में आया किस तरह से ये तीन चीजों में डिराइव किया। अभी तुम्हें समझेगा क्यों यही तीन टाइप में उसको डिवाइड किया। अभी तुम्हें पहले उसको समझना पड़ेगा। जब मैं तुम्हें डायमेंशंस का डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल इन दोनों को अलग-अलग पार्ट में क्यों रखा गया, ठीक है। ये स्पेशल केसेस है, डोंट वरी अबाउट इट। ये अभी तुम्हें बीच में लर्न नहीं वाला है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये ऐसे करके, ठीक है। ये दोनों को अलग रखना काफी इंपॉर्टेंट हुआ था और काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को साथ में रखते तो कुछ समझ में नहीं आता। अभी हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को, इस चीज को इजी करने के लिए हम सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद रखते हैं। फर्स्ट इज लेंथ। ये सातों के मीनिंग तुम्हें भी पता हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज बेसिक डिस्कशन, ठीक है। L represents the first is length, second is mass, third is time, fourth is temperature, fifth current, sixth is amount of substance, and seventh, last but not least,
इट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अभी ल्यूमिनस इंटेंसिटी वैसे क्या है वो सब तुम्हें अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम पूरे 11th में यूज भी नहीं करते हैं बेस ऑफ नाउ, ठीक है। तो तुम्हें उसका कोई मतलब नहीं है, उसका क्या मतलब है, किस तरह है, डोंट वरी अबाउट इट, कम ऑन आई टेल यू जब उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेंथ, L रिप्रेजेंट्स लेंथ, M रिप्रेजेंट्स मास, T रिप्रेजेंट्स टाइम, थीटा को हम थीटा से हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, करंट को हम I से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को वैसे तुम ऐसे मोल से रिप्रेजेंट करोगे, मैं बताऊंगा तुम्हें अभी थोड़ी देर के लिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी Li से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी लेंथ का यूनिट विल बी मीटर अकॉर्डिंग टू SI यूनिट सिस्टम, mass का unit will be kg according to SI unit system. We are talking about only SI unit system. Come on यार, ठीक है, हम सिर्फ SI unit system की बात कर रहे हैं। Time will be measured in second. ये तो MKS दिख रहा है। Yes, it is modification of metric system. SI unit system is a modification of what? MKS system or metric system. SI unit system is a modification of MKS or metric system. याद रहेगा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो तुम्हें आना चाहिए, समझा कि नहीं। SI unit system is modification of which system? Come on. Yes, metric system. Yes. Okay. The next is temperature. Temperature will be measured in Kelvin. Temperature के तुमने Kelvin तो कभी सुना नहीं होगा, कि ज्यादा करके तुमने डिग्री सेल्सियस सुना होगा, याद है? हाँ, डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, और फ़ारेनहाइट भी सुना होगा। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ रेफरेंस, सुनो ध्यान से। टेम्परेचर को मेजर करने के 3 यूनिट है। फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस, सेकंड से 5 यूनिट है। तुम अगर तुम्हारे पास एमआई का फोन है, गो इनटू कैलकुलेटर और कैलकुलेटर में जाके चेक करो और टेम्परेचर वाले पार्ट में, तो तुम्हें पता चलेगा कि वहां पे देखो 5 यूनिट होता है, ठीक है। मैं अभी हम यहाँ पे 3 ही पढ़ते हैं, और उसमें से भी हमें जो फंडामेंटल मानना है, स्टैंडर्ड मानना है, वो तो सिर्फ एक ही है, केल्विन, ठीक है। बट मैं 3 की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस, सेकंड इज डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड इज केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस वो यूनिट होता है जो नॉर्मली लेमन को भी समझ आता है, इट इज वाइडली यूज्ड, ठीक है। तो हम उसको बहुत ज्यादा करके सुनते हैं। तुमने न्यूज़ में कभी भी टेम्परेचर, वेदर ब्रॉडकास्टिंग ये सब सुना होगा ना, तो वो डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है, क्योंकि इट इज वाइडली अंडरस्टूड बाय एवरीथिंग, समझा? इट इज वाइडली अंडरस्टूड बाय एवरीथिंग, समझ में आया कि नहीं? इसलिए जब भी तुम बात करोगे वेदर ब्रॉडकास्टिंग होता है, तो वो डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है, क्योंकि सबको समझता है, उसके लिए साइंस करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन। फिर सेकेंड यूनिट इज फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो मोस्टली मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है। जैसे डॉक्टर, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुम्हारा टेम्परेचर जो मेजर करेगा थर्मोमीटर से, टेम्परेचर मेजर करेगा, तो ही विल टेल यू कि 101 का बुखार, 102 का बुखार, 103 का बुखार है। ये क्या होता है, सुनो ध्यान से। 100 का बुखार या 101 का बुखार, ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर कितना है। बॉडी टेम्परेचर इज हाउ मच? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस से 101 नहीं जाएगा, कम ऑन यार। योर बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज 98.5, तो 98.5 से लेके 101 गया है, 100 गया है, समझा कि नहीं? तो कोई 37 से लेके 101 नहीं जाएगा, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए डॉक्टर जो बात करेगा ना, वो किस में बात करेगा? डिग्री फ़ारेनहाइट में, याद रहेगा। तो और थर्ड इज केल्विन। केल्विन तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में हम यूज करते हैं। एक्सचेंज जब भी इंटरनेशनल डेटा एक्सचेंज करेंगे, साइंटिस्ट यूज करेंगे तभी, क्योंकि केल्विन की बहुत सारी खासियत है। जैसे केल्विन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो ऑब्वियसली सब नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नहीं, डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में भी होता है, तुम्हें पता है नेगेटिव टेम्परेचर होता है, हाँ सुनते हो ये सब। बस तो हम केल्विन को 0 से शुरू करते हैं। 0 केल्विन के नीचे कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, इसके नीचे है ही नहीं टेम्परेचर, समझा कि नहीं? तो इसलिए हम टेम्परेचर को केल्विन में स्टैंडर्डली मेजर करेंगे। करंट इज मेजर्ड इन, बोलो, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, तुम्हें पता ही है। अभी तो तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है 10th में, है कि नहीं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल, ये ज्यादा करके केमिस्ट्री में यूज होगा, फिजिक्स में कहीं यूज हो जाए, गैस वाला पार्ट में तो हो जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको कैंडेला में मेजर करते हैं। CD रिप्रेजेंट्स कैंडेला, याद रखो, CD रिप्रेजेंट्स कैंडेला, ठीक है। ये क्या है, इसके बारे में भी कोई मतलब नहीं है। जब इंटेंसिटी की चीजें पढ़ेंगे ना आगे जाके, तब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका आइडिया दूंगा। एज ऑफ नाउ इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, तुम कहीं यूज नहीं करने वाले ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, ठीक है। Length is measured in meter, mass is measured in kg, time is measured in second, temperature is measured in Kelvin, current is measured in ampere, amount of substance is measured in mole, और luminous intensity is measured in candela। तुम्हें ये सात याद रखनी है, जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें याद रहनी चाहिए। आपको 2 बजे भी तुम्हें पूछो तो तुम्हें आना चाहिए। कम ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Length is measured in meter, mass is measured in kg, time is measured in second, temperature is measured in Kelvin, current is measured in ampere, amount of substance is measured in mole, and luminous intensity is measured in candela। तो ये सिंबल्स के साथ ही मैंने लिख लिया। टेम्परेचर कैपिटल की, करंट एम कैपिटल ए,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL मोल, इसको सिर्फ M नहीं लिखना वरना मीटर और मीटर कंफ्यूज हो जाएगा, M और M कंफ्यूज हो जाएगा ना, समझा कि नहीं। लेंथ स्मॉल m, मास एक स्मॉल के चलेगा, के कैपिटल के भी चलेगा, केजी ग्राम, जी स्मॉल होना चाहिए बस। सेकंड के लिए सिर्फ एस लिखो, स्मॉल एस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएसी लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेवनेस इंटेंसिटी सीडी कैमरा याद रहेगा, यस वैसे तो यहाँ पे स्मॉल एस सी लिखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा नाउ सेकंड इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। व्हाट आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? पहले है उसको नहीं पढ़ते, पहले डिराइव्ड पे आते, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज पहले पढ़ते हैं ताकि तुम्हें इसका आइडिया अच्छे से मिले, ज्यादा अच्छे से मिले, ठीक है। चलो डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती है जो इनमें से डिराइव होती है। derived quantities are the quantities which are derived from fundamental quantity. It is as simple as that. Yes, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वो quantities होती है जो fundamental से derive की जाती है, याद रहेगा। जैसे कि let's take some example, area। एरिया का फॉर्मूला होता है मीटर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे आया सर? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो नंबर है, छोड़ो ना अभी के लिए। आर क्या है? मीटर। मीटर को आर तो लेंथ है ना, मतलब रेडियस, रेडियस इज मेजर्ड इन मीटर, मीटर का स्क्वायर हो गया ना। चलो दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, स्क्वायर के लिए क्या होता है? एल स्क्वायर। एल इज लेंथ, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया ना। फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ब्रेड्थ इज मेजर्ड इन मीटर, तो मीटर इनटू मीटर इज अगेन मीटर स्क्वायर। समझा कि नहीं? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर कैसे हुआ? तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट लेंथ यूज्ड 2 टाइम्स। हाँ, लेंथ यूज्ड 2 टाइम्स, तो लेंथ को 2 बार यूज करोगे तो एरिया बना ना क्वांटिटी। समझा कि नहीं? एरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम लेंथ। यस, इस तरह से हम इसको आगे एक और रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसी को हम डायमेंशन बोलने वाले हैं, बट इन डिफरेंट वे। ये बस बहुत रफ वे है, मैंने बताया सिर्फ तुम्हें किस तरह से लिया, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, स्पीड। स्पीड सुना है ना? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मोल मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड, देखो ये लेंथ को यूज करता है, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ को यूज करता है, सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, ये टाइम को भी यूज करता है, ये लेंथ और टाइम को दोनों को एक एक बार यूज करता है। इसलिए तो हम इसको बोलते हैं कि ये स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज लाइक लेंथ एंड टाइम। ये लेंथ और टाइम में से डिराइव हुआ है स्पीड। समझ में आया किस तरह से उसको डिराइव में डाला? एक्सेलरेशन, हाँ सबको कर सकते हो, ट्राई करना। एक्सेलरेशन और स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड तो ऑब्वियसली इधर से डिराइव हुआ ना, देखो स्पीड, देखो लेंथ और टाइम को यूज करके डिराइव हुआ, तो एक्सेलरेशन भी तो बाय डिफॉल्ट कहां से डिराइव हुआ? इधर से। हर क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी पढ़ोगे अभी फिजिक्स में, ऑल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड जस्ट फ्रॉम दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। याद रहेगा तुम्हें, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये 7 क्वांटिटी याद होनी चाहिए। ये डिराइव नहीं याद रखोगे चलेगा, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, चलो मत याद रखो, ठीक है, बट ये 7 याद रखो। इसके साथ में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी है? सबसे पहली प्लेन एंगल। इट्स एन एंगल बिटवीन 2 प्लेन और 2 लाइन, और एंगल इन अ प्लेन, याद रखो ऐसे, इट इज एन एंगल इन अ प्लेन। तो उसको मेजर करते, उसको हम मेजर करते ऐसे, उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, पर उसको मेजर करते हैं रेडियन में, ठीक है। ये फिजिक्स है, ये मैथ्स नहीं है। इसको तुम्हें यहाँ पे रेडियन में मेजर करना है। मुझे पता है तुमने डिग्रीज में मेजर किया उसको, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, सॉरी, उसको रेडियन में मेजर करोगे, याद रहेगा कि नहीं? तो यहाँ पे तुम उसको डिग्री में नहीं लिखोगे, 30 डिग्री 60 डिग्री, कम ऑन, दिस इज फिजिक्स। तुम्हें इसको रेडियन में लिखना पड़ेगा। पाई रेडियन, ऊपर ऐसा छोटा सा चंदा बनाते हैं, है ना, ऐसा पाई रेडियन, समझ रहा है कि नहीं? ये पाई लिखा और ऊपर कैसा छोटा सा ऐसा बना दिया सी, तो ये हो जाता है रेडियन, रिप्रेजेंट करता है, याद रहेगा। तो इस तरह से हम प्लेन एंगल इज एन एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल इन अ प्लेन। सुनो ध्यान से, ये लेंथ ऐसा एक प्लेन लिया, दूसरा एक प्लेन लिया, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता था वो क्या है? एंगल इन अ प्लेन। एक सिंपल सा एग्जांपल, ये लाइन, इसके बीच में ये जो एंगल है वो क्या है? थीटा, दैट इज एंगल इन अ प्लेन। इसको यूनिट देते हैं बट इसको डायमेंशन नहीं देते। मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसके पहले पता करके रखो क्यों ऐसा होता है। समझो, मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूं। तुमने सुना है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल कवर्ड, हां सुना है। उसके नहीं, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, बस ट्राई करो तुम खुद कैसे होता है वो, मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सेकंड, इसके बाद प्लेन एंगल के बाद आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बड़ा भाई है प्लेन एंगल का। और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को हम 3 डायमेंशनल एंगल की तरह समझ के रखते हैं, ठीक है। इसको हम मेजर करेंगे स्टेरेडियन में, STRAD ऐसे लिखो, ठीक है, स्टेरेडियन, याद रखो इसको, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन।
सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। क्या होता है ये सुनो, तुमने कोन देखा है? कोन, हाँ ऑब्वियसली देखा होगा। देखो ये कोन है, ठीक है, तो कोन के अंदर जो यहाँ पे देखो एक ऐसा एंगल बन रहा है ना, ये पूरा, ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, कम ऑन, ये डिफरेंट है। ये एक लाइन है सिर्फ ऐसी कर्व, लेकिन ये पूरी एक ऐसी स्पेस है, हाँ 3D स्पेस है, ऐसा कुछ कोन जैसा है, समझ रहे हो? कुछ इस तरह से ऐसा दिखेगा तुम्हें, ओ सॉरी नहीं दिखेगा ना, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ दिखेगा, समझ रहा है? कोन, हाँ यहाँ पे दिख रहा है ऐसा वाला जगह, तो उसको उसको हम बोलते हैं क्या? यस, दिस इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। ये है हमारा सॉलिड एंगल, उसको हम समझो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, याद रहेगा? उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से, सिग्मा से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, याद रहेगा? तो स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इज मेजर्ड सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन, स्टेरेडियन को हम ऐसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा कि नहीं? कम ऑन, यू नीड टू रिमेंबर दिस। अभी मैंने तुम्हें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बताई। ये दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के पास यूनिट होता है, लेकिन उनके पास डायमेंशन नहीं होता, बिकॉज़ दे आर द रेशियोज ऑफ द सेम क्वांटिटीज। समझा कि नहीं? मैं तुम्हें हिंट दिया है मैंने तुम्हें, अभी इसके आगे तुम्हें पता करना पड़ेगा कि क्यों इन दोनों के पास यूनिट होगा, डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन अभी डायमेंशन में मत जाओ, मैंने डायमेंशन सिखाया ही नहीं है। इसके बाद जब मैं डायमेंशन सिखा दूं, फिर पता करो कि क्यों इन दोनों के पास डायमेंशन नहीं होता, ठीक है? एज ऑफ नाउ डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद करनी है, बाकी कुछ नहीं। इसको लिखो, इसको याद करो, ठीक है? बाकी मैं तुम्हें सिखा दूंगा ना आगे। सो वी जस्ट स्टडीड दिस फंडामेंटल क्वांटिटी का लिस्ट। अभी तुम्हें ये सातों के सातों फंडामेंटल क्वांटिटी याद रखनी पड़ेगी। चलो एक ट्रिक करते हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं, तुम आंसर करो, ठीक है? लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन केजी, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, यस यस यस, गो अहेड। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, टेंपरेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, luminous intensity is measured in candela, the amount of substance is measured in मोल। यस, तुम्हें ये सातों की सातों याद रखनी पड़ेगी। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, इसको लिख के प्रैक्टिस करो, तुम्हें ये सातों आनी चाहिए, ठीक है? अभी इसमें से द क्वांटिटी जो ऊपर है ना, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली, द क्वांटिटीज व्हिच आर बिलो, तो वो ज्यादा इतनी यूज नहीं होने वाली एज ऑफ नाउ। बट हम ऑब्वियसली इसमें से पांचों क्वांटिटी सबसे ज्यादा यूज करेंगे, उस पांचों में से भी ये तीन अभी बहुत ज्यादा यूज होने वाली। ये दोनों हम जब पार्ट 2 ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं तब ज्यादा यूज करते हैं, करंट एंड ऑल दिस। तो राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग अहेड विद दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट तुम्हें इनके यूनिट याद होने चाहिए, ठीक है? नाउ लेट्स सी हाउ वी फाइंड आउट दिस dimensions of the quantities। अभी हमें इसके dimensions निकालना सीखना है, ठीक है? Come on, you need to understand this, this is one of the easiest part in physics। इसका कोई वैसे रियल लाइफ रिलेवेंस नहीं है, बट ये तुम्हें काफी एप्लीकेशंस देगी। ये अभी के लिए तुम्हें 3 एप्लीकेशन सिखाएगी, जहां पे ये तीनों के तीनों एप्लीकेशंस में तुम्हें कुछ ना कुछ फॉर्मूले डेवलप करने का, कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करने का। तुम्हें पता है ना 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, तो ये कैसे आता है? ये इस फंडामेंटल क्वांटिटी से और ये डेरिवेटिव क्वांटिटी के इस मेथड से, डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से पता चलता है, ठीक है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट फर्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशन। लेट्स गो अहेड विद इट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटी? ये क्वांटिटीज, जैसे तुमने ये सब क्वांटिटी के नाम सुने हुए, कम ऑन, यू हैव हर्ड ऑफ दिस, कम ऑन। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट dimensions of this quantity, ठीक है? Before we find out dimension of this quantity, we need to find out unit। हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू लिस्ट आउट द क्वांटिटी, देन वी विल फाइंड फार्मूला, एंड आफ्टर फार्मूला वी विल बी फाइंडिंग यूनिट। यूनिट के बाद हम फाइंड करेंगे डायमेंशन, ठीक है? दिस इज आवर सीक्वेंस, दिस इज आवर फ्लो चार्ट ऑफ फाइंडिंग डायमेंशन। तो अल्टीमेटली हमें डायमेंशन मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। लेंथ का कोई फार्मूला नहीं पता, वैसे उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, क्या लेंथ का यूनिट पता है? हाँ, हमने जस्ट याद किया, इट इज व्हाट? मीटर। तो लेंथ का यूनिट इज मीटर। नाउ लेट्स गो अहेड। अभी सेकंड क्वांटिटी के ऊपर जाते हैं। मास का यूनिट इज, बोलो हाँ, केजी। मास का यूनिट इज केजी। इसके फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज़ इट इज व्हाट? इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, वी डायरेक्टली नो द यूनिट। नाउ द थर्ड क्वांटिटी इज व्हाट? टाइम। टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, तो हमें इसके भी कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। वी नो द फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट। अभी हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशन, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट एग्जांपल, उसके बाद में सारी चीजें एज इजी एज दैट हो जाएगी। सुनो ध्यान से। तो डायमेंशन ऐसे लिखा करता है कि जहां पे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट वी राइट इनिशियल्स or symbols of this 7 fundamental quantity. We write what? Initials or symbols of this 7 fundamental quantity. Listen to me. L, length को हम किससे सिंबलाइज कर लेंगे? L से। L represents length, याद रहेगा? फिर M represents mass,
फिर टाइम, टी रिप्रेजेंट्स टाइम। फिर टेम्परेचर, लेट्स टेक थीटा, थीटा रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर। करंट, लेट्स टेक आई, आई रिप्रेजेंट्स करंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कुछ भी सिंबल ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इन दोनों को नहीं ले रहा हूँ, वी वोंट बी यूजिंग दिस मच। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी लेना है तो तुम Li लिख सकते हो, अदरवाइज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखना तो तुम MOL लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैं उसकी जरूरत नहीं है, मैं नहीं ले रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट। ओके, लुक हियर राइट नाउ। L represents length, length is measured in meter. M represents mass, mass is measured in kg. T represents time, time is measured in second. Theta represents temperature, temperature is measured in Kelvin. I represents current, current is measured in ampere. इसी तरह से आगे होता है luminous intensity which is measured in candela and amount of resistance which is measured in mole. ठीक है, right now we are not dealing with it. So right now L represents length, length is measured in meter. L represents length, length is measured in meter. क्या ये यूनिट में मीटर है क्या? हाँ है। M represents meter ना, देखो ये रहा, ये मीटर का स्मॉल m है। कम ऑन, दिस इज यूनिट। इसको देखते वक्त तुम यहाँ पे देखोगे, these are initials of this fundamental quantity. Don't get confused. Come on, ये यूनिट है, ये यूनिट है, यहाँ से लिखे गए, ठीक है। और ये जो है इनिशियल्स है इसके, या तो सिंबल्स है क्वांटिटी के, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, इसलिए इनको कैपिटल लेटर्स दिए गए। कम ऑन, डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज। M रिप्रेजेंट्स मीटर, यस ये मीटर का m है, ठीक है। तो L रिप्रेजेंट्स लेंथ, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। मीटर है क्या यहाँ पे? हाँ है। कितने टाइम में? उसका पावर कितना है? 1, तो इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। M represents what? Mass, ये कैपिटल M है। M represents mass, mass is measured in kg, kg है क्या यहाँ पे? ये क्वांटिटी, हम तो लेंथ की डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मास है क्या? नहीं, क्योंकि kg नहीं दिख रहा ना इधर, तो इधर m raised to 0 याद रहेगा। फिर t, t represents time, time is measured in second। क्या यहाँ पे लेंथ के यूनिट में सेकंड है क्या? नहीं है, नहीं है, तो इधर पावर 0 आएगा। समझ रहा है? थीटा, थीटा रिप्रेजेंट्स ऑब्वियसली इधर कुछ नहीं है, और तो इस सबको पावर 0 दे देते, समझा कि नहीं? इसके आगे जो भी होता वो होता। अच्छा, जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो जिसके भी पावर में 0 होता है, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज ऑल 1, 1 यहाँ पे लिखे नहीं लिखे एक ही बात है, तो इससे अच्छा मत लिखो। तो हम इसको सिर्फ ऐसे भी सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L रेज़ टू 1। समझ में आया कि नहीं बात? किस तरह से डायमेंशन निकाला। द नेक्स्ट क्वांटिटी इज व्हाट? मास। मास को कैसे मेजर करते हैं? मास को कैसे डायमेंशन लिखते हैं? कम ऑन लुक एट इट। तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिया, इसमें क्वांटिटीज लिखी L M T, चलो नहीं लिख रहे ना थीटा और आई, क्योंकि हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे, तो LMT 3 ही क्वांटिटी लिख रहे, ठीक है। ओके, नाउ L रिप्रेजेंट्स लेंथ, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। मीटर है क्या यहाँ पे? मास के यूनिट में मीटर है क्या? नहीं है, तो पावर 0। M represents mass, mass is measured in kg, kg है क्या यहाँ पे? हाँ है, देखो दे रहा, तो 1, क्योंकि इसका पावर 1 है ना, kg एक ही बार है यहाँ पे, इसलिए पावर 1। तो ये क्या है? t, t represents time, time is measured in second, second है क्या इधर? ये किसका यूनिट है? मास का यूनिट में सेकंड कहाँ से आएगा? तो पावर 0। समझ में आया कि नहीं? अगेन लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, टाइम के लिए निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा? LMT। अभी मैं सिर्फ ये 3 ही लिख रहा हूँ, यू कैन राइट ऑल 7 जैसे मैंने बताया, बार बार वो नहीं बता रहा हूँ। कम ऑन, L represents length, length is measured in meter, meter है क्या यहाँ पे? टाइम की यूनिट नहीं है, तो पावर 0। M represents mass, mass is measured in kg, kg है क्या यहाँ पे? देखो टाइम की यूनिट में नहीं है, तो यहाँ पे पावर 0। T represents time, time is measured in second, टाइम के यूनिट में सेकंड है क्या? है, तो पावर 1। तो L0 M0 T1, this is the dimension। इसको तुम सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा M1, यहाँ पे आ जाएगा बोलो T1। समझ में आया कि नहीं बात? तो तुम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, याद रहेगा। इसके अलावा अभी थोड़ा हायर लेवल होगा, ये बस फंडामेंटल क्वांटिटी से, बेसिक क्वांटिटी से, लेकिन इसके बाद लेवल रेज होता है। कम ऑन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एरिया, एरिया का रिलेटेड भी एरिया ऑफ एनी शेप ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, किसका है? किसका एरिया बोलो? हाँ, रेक्टेंगल का। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया बोलो? सर्कल का। L स्क्वायर किसका एरिया बोलो? स्क्वायर का। तो किसी का भी एरिया होने दो, लेकिन यूनिट सेम ही आएगा ना, शेप फर्क पड़ता है, एरिया का फॉर्मूला बदल जाएगा, लेकिन एरिया क्वांटिटी तो नहीं बदलेगा। वी आर डीलिंग विद क्वांटिटी, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ की जगह मीटर, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ब्रेड्थ इज मेजर्ड इन मीटर, तो मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ पाई तो वैसे भी 3.14 नंबर है, या तो रेडियन में मेजर होगा, इट डज नॉट हैव डायमेंशन। कम ऑन, R is measured in meter ना, radius is measured in meter, तो मीटर का स्क्वायर, तो ये भी तो मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। L स्क्वायर, अरे L लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर है ना, ये साइड होगी तो साइड की लेंथ तो मीटर में मेजर होगी, तो मीटर का स्क्वायर हो गया ना, हो गया, तो वही तो यूनिट है सबका। ऑल एरिया
एरिया ऑफ एनी शेप है सेम यूनिट है, मीटर स्क्वायर ही होता है, समझ रहा है? तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। अभी इसका डायमेंशन बनाना है, कम ऑन लेट्स मेक डायमेंशन। इधर क्या आ जाएगा, लेंथ मास टाइम। अभी मैं नहीं लिख रहा हूं आगे की क्वांटिटीज, यू नो ब्ला 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 ब्ला, ओके। L represents length, length is measuring meter, meter है क्या यहाँ पे, हाँ है, कितनी बार, 2 बार, तो L raised to 2। M represents mass, mass is measuring kg, kg है क्या यहाँ, नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0। प्लीज ऐसा मत करना, इधर m है इधर m है तो इधर 2 इधर चला दे, नहीं नहीं नहीं, कम ऑन, दैट्स रबिश, डोंट डू दिस, ओके। T represents time, time is measuring second, second है क्या एरिया के यूनिट में, नहीं है ना, तो इधर पावर 0, समझा? तो इसको तुम सिंपली L raised to 2 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा कि नहीं? बस दोनों में से कोई एक लिख लेना एटलीस्ट, ठीक है। नाउ वॉल्यूम, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वांटिटी व्हिच इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, सिलेंडर का। ये किसका फार्मूला है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सॉरी, ये किसका फार्मूला है, क्यूब का, ठीक है। तो देखो पाई आर स्क्वायर, पाई को जाने दो, 3.14 नंबर है। आर क्या है, आर बोलो, हाँ रेडियस, रेडियस को मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर into height, height is also measured in meter ना, मीटर का स्क्वायर into मीटर, बोलो क्या होता है, हाँ मीटर क्यूब, यस। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मीटर का क्यूब, देखो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ब्रेड्थ इज मेजर्ड इन मीटर, हाइट इज मेजर्ड इन मीटर, मीटर into मीटर क्या हो जाता है, मीटर क्यूब। लेट्स फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ दिस। स्क्वायर ब्रैकेट लिया, लेंथ मास टाइम एंड ऑल ब्ला 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 क्वांटिटीज। L represents length, length is measured in meter, meter है क्या इधर, हाँ है, वॉल्यूम के यूनिट में मीटर है, कितनी बार है, 3 बार है, तो पावर 3। M represents mass, mass is measured in, बोलो kg, mass is measured in kg, kg है क्या इधर, नहीं है, तो पावर 0। T represents time, time is measured in second, second है क्या इधर, नहीं है ना, 0। समझ में आया कि नहीं? इसको तुम come on, you can represent it like L raised to 3, समझ रहा है? अच्छा, अभी स्पीड, स्पीड इज द नेक्स्ट क्वांटिटी। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी भी हो सकती थी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, मतलब स्पीड की बात करते हैं, उसके बाद हम विल टॉक अबाउट वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, तो यूनिट क्या हो गया, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, रिप्लेस डिस्टेंस बाय मीटर, टाइम बाय सेकंड, तो आ गया ना स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड। Now let's find out the dimension of this. Come on, let's find out. बोलो, इधर क्या लिखेंगे, इधर आएगा L, है ना, इधर आएगा, नहीं वो नहीं चल रही है, come on, इधर आएगा L, इधर आएगा M, इधर आएगा T। बोलो, L represents length, length is measured in meter, meter है ना, एक बार है, देखो। M represents mass, mass is measured in kg, kg है क्या इधर, नहीं है ना, देखो नहीं है, स्पीड के में kg नहीं है, तो पावर 0। T represents time, time is measured in second, second है क्या इधर, देख, हाँ है, देखो ले, तो कितनी बार है, एक बार, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, इसलिए -1, समझ में आया, क्योंकि उसका सेकंड का पावर ही -1, जरा ध्यान से देखोगे तो समझेगा, हाँ देखा ना, okay। Now let's go for seventh acceleration। Acceleration is a formula as speed upon time, acceleration as a formula of speed upon time। चलो उसका यूनिट निकालते हैं। स्पीड का यूनिट पता है कि, हाँ देखिए रहा, स्पीड का यूनिट क्या है, बोलो मीटर पर सेकंड, स्पीड का यूनिट इज मीटर पर सेकंड, तो स्पीड की जगह लिख लो मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम ना, डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब डिवाइडेड बाय सेकंड, सेकंड अपॉन सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तुम्हें पता है ये कैसे किया हमने, कम ऑन यार, ये स्पीड कैसे मेजर की, मीटर पर सेकंड में, टाइम किस में मेजर किया, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, सेकंड मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, किस तरह से किया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। लेट्स फाइंड आउट डायमेंशन। कैसे डायमेंशन निकालते हैं, पहले क्या लिखेंगे, L, फिर M, फिर T। चाहिए तो हम आगे के लिख सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। L represents length, length is measured in meter, है ना, मीटर, ये देखो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मीटर है कि नहीं है, तो क्या आएगा पावर, बोलो, इधर आएगा पावर 1, क्योंकि उसका मीटर का पावर ही 1 है ना। M represents mass, mass is measured in kg, kg है क्या इसके एक्सेलरेशन के यूनिट में, kg दिख रहा है नहीं ना, तो इधर क्या आएगा, बोलो 0। T represents time, time is measured in second, time is measured in second, तो सेकंड है क्या इधर, हाँ है, कितनी बार है, 2 बार, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, इसलिए -2। समझ में आया कि नहीं, न्यूमरेटर में होता है तो पावर पॉजिटिव होता है, डिनोमिनेटर में होता है तो पावर नेगेटिव होता है, तुम्हें पता है, इतना बेसिक मैथ्स है, कम ऑन यार। Now the next quantity is force. Force is mass into acceleration. F is equal to mass into acceleration. You know this formula. Come on. Mass is measured in kg into
Acceleration is measuring, भाई acceleration तो देखो ये रहा, हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Acceleration is measuring मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझ में आया कि नहीं किस तरह से किया ना? हाँ, ब्रैकेट लिया LMT. अच्छा, let's go ahead with it. L represents length. Length is measured in meter. Meter है क्या? हाँ है. देखो एक बार है तो इधर आएगा 1. M represents mass. Mass is measured in kg. kg है क्या? नहीं है. है. देखो kg का मोनी हो गया. देखो kg का पावर 1 क्योंकि है इधर kg एक बार. फिर T represents time. Time is measured in second. Second है क्या इधर? है. कितनी बार है? 2 बार है. कितना? ऊपर है कि नीचे? नीचे. तो इधर आएगा ना -2. समझ में आया कि नहीं किस तरह से किया है? Come on, did you understand this? Okay, the next quantity is what? Work. Work is force into displacement. Do you know the unit of work force? Yeah, अभी तो किया हमने force. देखो ये रहा. फिर displacement. Displacement is nothing but the distance का एक alternative version ना. जैसे कि distance is scalar quantity, displacement is vector quantity. हाँ, तो मैं idea है इस चीज का. Displacement is also measured in length. है ना? Displacement भी तो length ही है. उसको भी तो मीटर में measure करेंगे. तो force हाँ, डिस्प्लेसमेंट हाँ, दोनों पता है. कम ऑन, लेट्स फाइंड आउट फोर्स का क्या यूनिट होता है. बोलो, फोर्स का यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स का यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इनटू क्या आएगा? बोलो. इनटू है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? बोलो ना. डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? मीटर की मास मीटर लिखेंगे कि केजी लिखेंगे कि सेकंड लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इट इज अ लेंथ. लेंथ इज मेजर्ड इन यस मीटर. तो इधर मीटर. मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर. केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. समझ में आया मैंने किस तरह से लिखा है ऐसा? दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क डन. याद रखना इसको, ठीक है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो लेट्स फाइंड आउट डायमेंशन L M T. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट. L represents length. Length is measured in meter. मीटर है क्या यहाँ पे? हाँ, कितनी बार है? एक बार है कि 2 बार है? 2 बार है. देखो मीटर और मीटर. 12:2. M represents mass. Mass is measured in kg. kg कितनी बार है? एक बार है. Yes. T represents time. Time is measured in second. Second कितनी बार है? एक बार है कि 2 बार है? 2 बार है. देखो ये रहा. Second 2 बार है. न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में. Yes. तो it will be -2. समझ में आया किस तरह से लिखा? This is the dimension of this work. याद रहेगा. अच्छा, कुछ स्पेशल चीजें बता दो इसके बारे में. ये जो फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट ये तो बन ही गया ना. क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन बोल देंगे. आज से क्या बोलेंगे? बोलो. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. समझ में आया कि नहीं? केजी 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन. याद रहेगा. तो आज से वी विल कॉल केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ न्यूटन इटसेल्फ. याद रहेगा. तो न्यूटन लिखो. तो न्यूटन का डायमेंशन L1 M1 T-2. समझ में आया किस तरह से हुआ? बस इस यूनिट को हमने एक और नया नाम दे दिया और कुछ नहीं है. कम ऑन, डोंट वरी अबाउट इट. वर्क. वर्क को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं. याद कर लो, तुमने जूल में मेजर किया स्कूल में वर्क डन को. यस यस यस, वर्क को तुमने जूल में मेजर किया. तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को आज से हम क्या बोलेंगे? बोलो. जूल. यस. 1 जूल इज इक्वल टू 1 joule is equal to 1 kg meter square per second square. याद रखना आज से 1 joule is equal to 1 kg meter square per सेकंड स्क्वायर. ये हो गया जूल. समझ में आया कि नहीं? जिसको तुम JOULE लिखते थे. याद करो याद करो. यस, दिस इज व्हाट जूल. यस. तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम आज से जूल लिखेंगे एंड जूल का डायमेंशन इज L2 M1 T-2. याद रहेगा. तो इवन दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय जूल. याद रहेगा. लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि देखो ये वर्क डन जूल में मेजर होता है तो तुम ये डायमेंशन निकाल पाते. कम ऑन, दिस इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ. ओके, तुम्हें समझ में आया कि नहीं किस तरह से मैंने तुम्हें कराया है? ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट थिंग व्हिच इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी भी तो हम जूल में ही मेजर करते थे लेकिन जूल से हम नहीं निकाल सकते डायमेंशन. कम ऑन, वो एक ऐसा नाम है जिसके अंदर क्या यूनिट भरा हमें पता नहीं चल सकता. तो एज ऑफ नाउ हम फार्मूला पे जाते हैं. कम ऑन, हाफ इज अ नंबर. नंबर के डायमेंशंस और यूनिट नहीं होते. अगर नंबर का यूनिट होता है तो आज हमारे पास करोड़ों यूनिट होते. कम ऑन, फिजिक्स पढ़ना सबसे डिफिकल्ट होता है फिर तो. ठीक है. हाफ रिप्रेजेंट्स नंबर. नंबर तो कुछ होता ही नहीं है, उसका यूनिट नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता. तो लेट्स नॉट कंसीडर दिस. मास इज मेजर्ड इन केजी. वेलोसिटी का स्क्वायर. जहां पे स्क्वायर है वहां पे स्क्वायर करना पड़ता है. लेकिन पहले वेलोसिटी स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है. कम ऑन, वन इज स्केलर वन इज वेक्टर.
तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। इसके स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, अभी के लिए हमारे लिए दोनों सेम है। अभी हम स्केलर वेक्टर्स में नहीं घुसे। कम ऑन, नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्केलर वेक्टर्स, तब हम उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, तो स्पीड का यूनिट और डायमेंशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मुझे बताओ मास को मेजर किया केजी में, फिर ब्रैकेट लिया, वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है ना, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है बोलो? वेलोसिटी का यूनिट इज मीटर पर सेकंड। समझा ना? वेलोसिटी को हमने कैसे स्पीड के साथ रिलेट करके यहाँ पे उसका यूनिट मीटर पर सेकंड लिया। यस, तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? देखो ना, स्क्वायर स्क्वायर ओपन करो ना, ब्रैकेट ओपन करो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करना है बस, बाकी कुछ नहीं। तो क्या आएगा बोलो? ब्रैकेट यहाँ पे लिखा एल एम टी, यस। तो उसके बाद बोलो मुझे यहाँ पे क्या आएगा? एल रिप्रेजेंट्स लेंथ, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मीटर एक बार है कि दो बार है? दो बार है, कम ऑन यार, यस। एम रिप्रेजेंट्स मास, मास इज मेजर्ड इन केजी, केजी एक बार है कि दो बार है? एक बार है, ठीक है। फिर टी रिप्रेजेंट्स टाइम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, सेकंड एक बार है कि दो बार है? दो बार है, यस। वाओ, ये दोनों के डायमेंशन तो सेम आ गए, कम ऑन। ये वर्क भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, याद आया कि नहीं? ऑल एनर्जीज हैव सेम यूनिट and same direct dimension, याद रहेगा, all energies have same unit and same dimension, याद रखो इस चीज को, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि work is a form of energy, kinetic energy is a form of energy, let it be any energy, हर एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन ये ही रहेगा। all energies can be measured in joule, all energies can be written as dimension of L2 m1 t minus 2। समझ में आया कि नहीं किस तरह से मैंने लिखा? समझा कि नहीं किस तरह से आया? Yes, very good. Now the next is 11th is what? Torque. Torque कैसे लिखते हैं? Force into perpendicular distance। तुम्हें पता होगा शायद torque, अगर तुम CBSE ICSE से हो तो तुम्हें torque मतलब turning effect। turning effect कैसे दिया जाता है? समझो ये particular पेन है, पेन को मैंने इस यहाँ से पकड़ के रखा है, तो if I give this force, तो यहाँ पे मैं उसको force दूंगा, but force के साथ में perpendicular distance देना पड़ता है। तो if this is the force which is given and here's the perpendicular distance, तब ये चीज rotate करेगी, दिख रहा है? ये rotate कर रही है, तो इस तरह से रोटेशनल मोशन लेती है। दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट डिस्कशन, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, बट अभी के लिए समझो कि ये कोई क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले से दिया है, ठीक है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो क्या आएगा? फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट, हाँ पता है मुझे क्या है, क्या है फोर्स का यूनिट? तो न्यूटन है, यस। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट बोलो, फोर्स का यूनिट मैंने लिखा ना, फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, न्यूटन लिखा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट क्या? डिस्टेंस है ना, इट इज मेजर्ड इन मीटर इटसेल्फ, तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर। बट इससे हमारा काम आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा? आसान भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, दोनों भी है, बोलो कौन सा करें? चलो आसान करते हैं, चलो कोई बात नहीं। पहले न्यूटन, न्यूटन का डायमेंशन लेके आओ, यस, ये न्यूटन का डायमेंशन है, तो यहाँ पे हम उसका डायमेंशन लिखते हैं। न्यूटन का डायमेंशन क्या है? L1 m1 एंड t minus 2, समझ में आया? फिर मीटर, मीटर इज यस लेंथ ना, तो लेंथ का डायमेंशन लिखे हो, क्या है? L1 लिखते हैं ना सिंपली, L1। कम ऑन, इन दोनों को कंबाइन करो, पावर तो ऐड करने आता है ना तुम्हें, समझ रहा है कि नहीं? L और L, L का पावर 1, L का पावर 1, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा? L का, L का पावर हो जाएगा 2, m का पावर 1, यहाँ तो कोई m है ही नहीं ना, अगर होता भी तो m रेज़ टू 0 होता, देखो तो 0 + 1 अगेन इट इज 1 ना, तो m रेज़ टू 1, t रेज़ टू -2, क्योंकि दूसरा वाला अगर यहाँ पे देखो इसके साथ में अगर t होता तो भी तो 0 होता, तो फर्क ही नहीं पड़ता ना फिर, तो इधर t रेज़ टू -2। समझ में आया ये क्या है? तो इस तरह से मैंने निकाला। तुम्हें बाकी दूसरा तरीका चाहिए, कम ऑन यार, यू कैन राइट फोर्स का यूनिट इज व्हाट? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर का मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर गोस टू व्हाट? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, ये भी देखो ये एनर्जी के जैसा यूनिट लेके आया है, मतलब इवन टॉर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, तुम्हें याद रखना है, ये सारे एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, तो एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी विल हैव दिस यूनिट and this dimension। तुम न्यूटन मीटर बोलो, जूल बोलो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बोलो, it is one and the same thing। come on, are you getting it? okay, the next quantity is what? power। power का निकालते हैं, चलो power का dimension निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं पहले। come on, power is work upon time। work is this is yes kg meter square per second square, या तो जूल लिखे, हाँ जूल लिखना है, चलो जूल लिखते हैं, तो work is measured in joule upon time is measured in second, ठीक है? work is measured in joule
टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। लेट्स गो अहेड। लास्ट डायमेंशन है, प्लीज ध्यान दो। जूल का डायमेंशन क्या होता है? जूल यस इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्क। वर्क का डायमेंशन इज L2 m1 t-2। तो जूल की जगह मैंने लिख दिया L2 m1 t-2। समझ में आया कि नहीं? नीचे और क्या लिखेंगे बोलो, कम ऑन। सेकंड किसका? टाइम है ना, टाइम तो सेकंड को तो हम ऐसे t-1 लिखते हैं, या तो ऐसा लिख देते हैं L0 m0 t-1, L0 m0 t-1। समझ में आया? इसको सॉल्व करो, कम ऑन। ये नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करो, बेसिक मैथमेटिक्स है, कम ऑन। क्या आएगा? L2 और 0 2 माइन, तो पता है ना न्यूमरेटर के पावर पॉजिटिव होता है, डिनोमिनेटर के पावर नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव पावर माइनस नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, तो देखो L2 minus 0 2, M 1 - 0 1, T -2 -1। अरे नीचे 1 है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा ना, तो -2 -1 कितना हो जाएगा? -2 -1 is -3। हाँ, यस। अब दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, याद रहेगा। पावर का डायमेंशन क्या है बोलो? L2 m1 t-3। यस, एंड दिस कंबाइंड यूनिट can be written as watt, W-A-T-T। तुम्हें पता है, ये तुमने पढ़ा है अभी इलेक्ट्रिसिटी में। यस, जूल पर सेकंड इज नथिंग बट मेजर्ड इन watt। तो इसको कोई watt बोलता है, कोई watt बोलता है, इट इज योर कॉल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नाउ L2 m1 t-3 इज द यूनिट ऑफ पावर। अभी मैंने ये डायमेंशन क्यों कराया तुम्हें, ये तुम्हें पूरा याद रखना पड़ेगा। ये इतनी क्वांटिटी नहीं है, पूरे फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी क्वांटिटीज के डायमेंशंस तुम्हें याद होने चाहिए। कम ऑन, देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चन इन एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इसका डायमेंशन बताओ, तुम्हें आना चाहिए लिखने को। कम ऑन, ये बहुत इजी है यार, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता फिजिक्स में। यू हैव टू रिमेंबर दिस डायमेंशन। लेंथ का डायमेंशन L1, मास का डायमेंशन m1, टाइम का डायमेंशन t1, फोर्स का डायमेंशन L1 m1 t-2, एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1 m0 t-2। समझेगा कि नहीं? स्पीड का डायमेंशन L1 m0 t-1, याद रहेगा। एनर्जी का डायमेंशन L2 m1 t-2। समझेगा कि नहीं? ये तुम्हें याद रखना है। कम ऑन यार, यू हैव टू रिमेंबर दिस डायमेंशन। इसके अलावा मैं तुम्हें और क्वेश्चन दूंगा, यू हैव टू राइट दोस क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन लाना है तुम्हें, ठीक है? अच्छा, ध्यान से सुनो। अभी हमने इतना लिखा तो सही, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है सुनना ध्यान से। व्हाट आर डायमेंशन? ये एक्चुअली ये डायमेंशन नहीं है, ये सुनो ध्यान से। सर अभी आप ये बोल रहे हो डायमेंशन नहीं है, कम ऑन, आपने बहुत बड़ा टाइम वेस्ट किया। नहीं, सुन ध्यान से। डायमेंशंस आर द पावर्स रेज्ड टू फंडामेंटल क्वांटिटीज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझा तो वापस सुन। डायमेंशंस are the powers raised to fundamental quantities written in square bracket। yes, इसीलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखते हैं, उनके ऊपर नंबर्स चढ़ा देते हैं, और वो नंबर्स जिनको हम पावर्स बोलते हैं, दोस पावर्स आर ओनली दिस कॉल्ड एज डायमेंशन। समझेगा कि नहीं? ये रिप्रेजेंट करता है कि लेंथ मतलब ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, अभी लेंथ में समझेगा नहीं, थोड़ा एक इधर आता है। चलो, एरिया यूजेस 2 यूनिट्स ऑफ लेंथ। यस, स्पीड यूजेस कम ऑन, लेंथ को यूज करता है, टाइम को यूज करता है। लेंथ को न्यूमरेटर में यूज करेगा, टाइम को डिनोमिनेटर में। लेंथ का 1 यूनिट यूज करेगा, टाइम का 1 यूनिट यूज करेगा। समझा कि नहीं? ऐसे तो पता चलेगा, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, तो न्यूमरेटर में मीटर आएगा, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, तो डिनोमिनेटर में सेकंड आएगा। इससे ये फॉर्म हो गया, इससे ये पता चल सकता है क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं? ऐसे अगर कोई भी क्वांटिटी है, जैसे कि ये, तो हम पता कर सकते हैं कि देखो, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, इन तीनों का डायमेंशन सेम है। कम ऑन, तो वो तीनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, दे कैन गेट कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। समझ रहा है तुम्हें मैं कैसे बोल रहा हूं? हाँ, तो इससे काफी सारी चीजें इजी हो जाती है। जैसे कि समझो force है, force uses 1 unit of length, 1 unit of meter, 1 unit of mass and 2 units of time, where length and mass will be in numerator and time will be in denominator। समझेगा? लेंथ मीटर, मास केजी मीटर, और नीचे क्या आएगा? सेकंड स्क्वायर, सेकंड तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे करके हम इसका यूनिट भी पता कर सकते हैं। अरे कर सकते हो ऑब्वियसली, इधर से तो वो निकाला तो उधर से तो ये आराम से निकलेगा ना। कम ऑन यार, यू नो दिस, है ना? इजी है, बहुत इजी है। कम ऑन। उसके बाद में ये यहाँ से हमें 2 चीजें पता चली कि कौन सी क्वांटिटी कितना यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ये कौन सी क्वांटिटी, मतलब ये तीनों तो फंडामेंटल है,
ये कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी कहां से डिराइव होती है? फंडामेंटल से। मतलब स्पीड यूजेस लेंथ एंड टाइम, इसलिए तो बोला था derived quantities are those quantities which are derived from fundamental quantities. देख, acceleration is derived from length and time, where length is used once and time is used twice in denominator obviously. Work is derived from length, mass and time, where length is used 2 times, mass is used 1 times and then time is used 2 times. समझ में आया किस तरह से derive हुआ? यस तो ये सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज बोली जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं कि ये देखो लेंथ को 3 बार यूज करो, मास को 0, एक कुछ यूज ही मत करो, टाइम को यूज ही मत करो, तो तुम्हें वॉल्यूम के जैसे क्वांटिटी मिलेगी। यस तो ये हमें बताता है कि ये सारी की सारी जितनी भी क्वांटिटी है वो सिर्फ लेंथ, मास, टाइम से डिराइव हुई है, मतलब दोस आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ में आया कि नहीं बात? कम ऑन, डिड यू अंडरस्टैंड? यस तो इस तरह से हम ये डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। You have to solve this assignment जो मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ। Come on, you have to do this. मैं तुम्हें उसका आंसर भी रिफ्लेक्ट करूँगा। See you soon. Bye bye. Thank you.